पठानकोट में जिला बनाए जाने के बाद सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया गया था, जिसमें सभी अधिकारियों को एक ही जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। जिसके बाद अलग अलग विभागों में बैठे टाइपिस्ट, स्टैम्प फरोश, वसीका नवीस जिनको चैम्बर मिले हुए थे, उन्हें मिनी सेक्रेटेरिएट में नए चैम्बर दिए जाने हैं, जिनके लिए 50,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर इन सब ने जमा करवाने हैं। लेकिन इन सब को ये बिल्कुल मंजूर नहीं, जिसके चलते सभी ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है और 2 दिन से ये हड़ताल पर ही हैं। यही नहीं, चैम्बरों के किराए को भी 100 रुपए महीने से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है, जिसको लेकर सभी वसीका नवीस और स्टाम्प फरोश ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगे ना माने जाने पर अपनी हड़ताल जारी रखने की बात कही। इस बारे में बात करते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हमें मिनी सेक्रेटेरिएट में नए चैम्बर दिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमसे 50-50 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, जो हमें मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि किराया भी बढ़ाया गया है। अगर प्रशासन ने ये सब करना है तो जैसे पटियाला में जिन लोगों को चैम्बर दिए हैं, उनकी रजिस्ट्री भी उसी शख्स के नाम की गई है, जिसका चैम्बर है, हमें भी उसी दायरे में लाया जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अपना काम इसी तरह बंद रखेंगे। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਵਸੀਕਾਂ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੈ, PWD ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, PWD ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਰਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਪੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 50,000 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚੀਏ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1200 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਆਇਆ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਗੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ बैनामे। वहीं इस मामले में जब DC पठानकोट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सभी लोग मेरे पास आए थे, उनकी सभी मांगे सरकार ने लेबल की है, जो कि हमने सरकार को भेज दी है। जो भी सरकार फैसला लेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो वसीका नवीसों ने स्ट्राइक की हुई है और काम बंद किया हुआ है, उनके बेसिकली कुछ इश्यूज हैं। 2-3 बार उन्होंने मेरे साथ मुलाकात भी की है और अपनी डिमांड भी रखी है। कुछ डिमांड्स जो हैं वो पॉलिसी के अंडर में आते हैं जिसमें हमारे लेवल पे नहीं है। जैसे उनकी एक डिमांड है कि जो जगह यहाँ पे हम 6/8 की प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, वो बढ़ा के दी जाए। तो जो कचहरी कंपाउंड रूल है उसमें तो वुडन बेंच का ही है और उस प्रैक्टिकलिटी देखते हुए 6/8 को उसको किया गया है रेगुलेशन के तहत, तो हमने उतनी कर दी है। उससे जगह बढ़ानी है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर गवर्नमेंट से डायरेक्शन आएगा तो फिर हम कर सकते हैं उसमें चेंजेस। दूसरी उनकी डिमांड थी कि जो हम 50,000 सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं जो रिफंडेबल है वो ना लिया जाए।
तो चूंकि सारे लोगों के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई गई है और ये हम लोगों ने इसलिए रखा है कि कभी जब काम छोड़ के जाते हैं या कई बार लोग सबलेट कर देते हैं और हमारी जो रेंट है या बिजली बिल के बकाया जो हो जाते हैं उनके, वो रिकवरी नहीं हो पाती है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी अमाउंट रखी गई है जो कि अगर काम छोड़ते हैं तो उनको रिफंड कर दी जाएगी। और इन लोगों के लिए मैंने 3 किश्तें भी कर दी हैं कि आप 3 किश्त में दे सकते हैं। उसके बावजूद अगर ये एग्री नहीं करते हैं तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है इस चीज़ पे। और तीसरी डिमांड ये थी कि जो यहाँ पे रेंट असेस किया गया है वो लगभग 1000 रुपये महीने का यानी 12000 का सालाना है, और उनकी डिमांड है कि जो 1200 सालाना पहले चल रही थी जब पुराने तहसील कॉम्प्लेक्स में बैठे थे उसी रेट पे किया जाए। तो उसमें ये इशू है कि जो ये असेसमेंट है वो BNR ने लोकेशन और उसके हिसाब से रूल्स के हिसाब से की है, इसमें हमारे लेवल पे चेंज नहीं हो सकता है। आज ही तहसीलदार साहब के थ्रू उन्होंने एक डिमांड पत्र फिर से दिया है जिसमें उन्होंने पटियाला की रजिस्ट्री की कॉपी लगाई है कि वहाँ पे वसीका नवी स्कूल रजिस्ट्री की गई है। तो उसमें कल भी उनसे मुलाकात में और आज भी वो दोनों उनका केस बना के हम FCR साहब के पास भेज देंगे। गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट, नेशनल बज़ के लिए।